یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے۔ آپ اولاد آدم ہیں اور یہ چینل آپ کے لیے ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیسے آپ کا سفر آدم سے شروع ہوا اور آج تک آپ تک پہنچا۔ اگر یہ کہانی آپ کی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اپنی اصل کہانی کبھی نہ مس کریں۔ پہلے زمانے میں جب انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، آدم نے اپنی اولاد کو بڑھتے دیکھا۔ نہ صرف ان کی تعداد بڑھ رہی تھی بلکہ ان کے جذبات اور فطرت بھی سمجھ میں آ رہے تھے۔ قرآن، تورات اور بائبل سب کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ دل روشنی کی طرف جھکتے تھے، کچھ ہوا اور شوق کی طرف۔ کچھ کے اندر سچائی اور انصاف کا جذبہ تھا، کچھ صرف اپنی خوشی اور شوق کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کچھ نسلیں اپنے عمل اور ایمانداری کی وجہ سے چنی گئی تاکہ انسانیت میں سچ اور انصاف کا پیغام برقرار رہے۔ تورات کہتی ہے کہ کچھ نسلیں اللہ کی رحمت اور ہدایت کے لیے مخصوص کی گئی تاکہ وہ انسانیت کے لیے مثال بن سکیں۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اللہ نے کچھ اولاد آدم کو دوسروں پر ترجیح دی، نہ صرف ان کی نسل یا خون کی وجہ سے بلکہ ان کی ایمانداری، سچائی اور عبادت کی بنیاد پر۔ آدم نے اپنی اولاد کے درمیان فرق دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دل نرم اور عاجزی کے ساتھ جھکتے تھے، کچھ دل غرور اور خواہشات کی طرف مائل تھے۔ آدم نے جلدی سمجھ لیا کہ انسانیت میں برابری کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی ذمہ داری ہو۔ کچھ افراد ایسے تھے جن کے اندر وہ قوت اور شعور تھا جو نسلوں کو سنور سکتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ نہیں تھے، نہ حکمران۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموشی سے سنتے، جو غلطی کو محسوس کرتے اور درست کرتے۔ ان میں سے کچھ نے سوالات کیے، کچھ نے اپنے غم کو سمجھا، کچھ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ آدم کو یہ خوفناک حقیقت معلوم ہوئی کہ چنا جانا انعام نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کتابوں میں واضح ہے کہ اللہ نے چناؤ کبھی طاقت، حسن یا نسل کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ انصاف اور سچائی کے لیے کیا۔ جو چنے گئے وہ ایسے تھے جو خاموشی سے عمل کرتے، جو غلطی سے سیکھتے، جو سچائی اور ایمان کو ترجیح دیتے۔ اس فرق نے بھائیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے روشنی ان پر گر رہی ہے اور کچھ اس روشنی سے جل رہے تھے۔ آدم نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ روشنی اکثر اندھیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جو روشنی لے کر چنے جاتے ہیں ان پر امتحان بھی زیادہ آتا ہے۔ چنے ہوئے لوگ آسان راستے اختیار نہیں کرتے تھے۔ جب غصہ جائز لگتا وہ روک دیتے، جب بدلہ لینا چاہتے وہ معاف کر دیتے، جب شارٹ کٹ آسان لگتا وہ منع کر دیتے۔ اس پر لوگ انہیں کمزور سمجھتے، لیکن اللہ کے نظر میں وہ سب سے مضبوط تھے۔ کتابیں واضح کرتی ہیں کہ جو چنے گئے وہ اکثر تنہا ہوتے۔ ان کی سمجھ کو سمجھا نہیں جاتا، ان کی خاموشی کو مذاق سمجھا جاتا۔ ان کا صبر بار بار امتحان ہوتا رہا جب تک صبر بھی امتحان نہ لگنے لگے۔ آدم نے دیکھا کہ چنے ہوئے کو کوئی نقصان سے نہیں بچاتا، وہ اکثر خود امتحان میں ڈال دیے جاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت امتحان لاتی ہے، بائبل کہتا ہے کہ سچائی کا راستہ مخالفت لے کر آتا ہے، تورات کہتی ہے کہ انسانی ذمہ داری جلانے اور حسد کو بڑھاتی ہے۔ یہ سب تصادف نہیں تھا، یہ نقشہ تھا۔ چنے ہوئے لوگ مثال بن کر رہے، ان کے ذریعے دوسرے اپنے برائی یا اپنی ایمانداری کو دیکھتے، اور اکثر وہ پسند نہیں کرتے جو وہ دیکھتے۔ کچھ بچے دنیا کی خواہش سے متاثر ہوئے، کچھ اپنے جذبات سے۔ آدم نے کہا کہ وہ دونوں ایک کہانی کا حصہ ہیں۔ بغیر ان کی ضد اور جلنے کے چنے ہوئے اپنی ایمانداری نہیں دکھا سکتے۔ کچھ لمحات آئے جب آدم نے دیکھا ایک چنے ہوئے نے تنہا ہو کر غم میں ڈوبا، انصاف اور حق کے سوالات میں۔ یہ سوالات انصاف، ذمہ داری اور اخلاق کے تھے۔ یہ سوالات ان لوگوں کی نشانی تھے جو چنے گئے۔
जो चुने हुए थे इन्हें अक्सर समझा नहीं जाता। उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका इम्तिहान, ये सब इन्हें अकेला करते, लेकिन उन सब में उनकी रोशनी और ईमान बरकरार रहा। आदम समझ गया कि चना जाना सिर्फ नस्ल से नहीं, हर दिन के अमल से होता है। अगर चुने हुए ने गुरूर और तकब्बुर अपना लिया तो वो उन लोगों से भी गिर जाते जो कभी चुने नहीं गए। ये सच्चाई इन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। चुने हुए हर दिन चुने जाते, और ये सिलसिला हर नस्ल में दोहराया जाता। एक रास्ता इंसाफ का, एक रास्ता ख्वाहिश और शौक का, और इंसानियत अक्सर गलत रास्ता पसंद करती है। चुने हुए अक्सर तन्हा रहते, इम्तिहान सहते, और अक्सर इन्हें अपने सबसे करीब लोग समझते नहीं थे। लेकिन इस सिलसिले में सच्चाई बरकरार रहती। आदम की औलाद के फैलने के साथ चुने हुए लोगों पर अल्लाह की तरफ से आयद जिम्मेदारी भारी होती गई। फासिला और वक्त भी फ़र्क को कम नहीं कर सके। हर इज्तिमा में वही मंजर दिखाई देता था। कुछ दिल सुकून और आजिज़ी के साथ चलते, कुछ दिल दुनियावी ख्वाहिशात और गुरूर की तरफ माइल रहते। चुने हुए लोग कभी आसान रास्ते इख्तियार नहीं करते थे। जब गुस्सा जायज़ महसूस होता, वो उसे रोक लेते। जब बदला लेना आसान लगता, वो मुआफ़ कर देते। जब किसी काम में शॉर्टकट कामयाबी की ज़मानत देता, वो उसे इख्तियार नहीं करते। यही रवैया इन्हीं लोगों की नज़र में कमज़ोर दिखाता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक यही सबसे मजबूत किरदार था। किताबें बयान करती हैं कि चुने हुए अक्सर तन्हा रहते। उनकी नीयत को समझा नहीं जाता। उनकी खामोशी का मजाक उड़ जाता। उनका सब्र बार बार आजमाया जाता, यहाँ तक कि सब्र खुद भी एक इम्तिहान बन जाता। आदम ने समझ लिया कि चुने हुए हरगिज़ नुकसान से महफूज नहीं थे, बल्कि इन्हें अक्सर बराह रास्त मुश्किलात में डाल दिया जाता। कुरान कहता है कि रहनुमाई के लिए इम्तिहान ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज को मुखालफत का सामना करना पड़ता है। तौरात में जिक्र है कि अखलाकी जिम्मेदारी हसद और दुश्मनी को बढ़ाती है। ये सब इत्तिफाक नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बंदी थी। चुने हुए लोग मिसाल कायम करने के लिए थे। उनके ज़रिए दूसरे अपने आमाल और अपने इखलाक को देखते, और अक्सर वो लोग पसंद नहीं करते जो हकीकत में रोशनी दिखाती थी। कुछ औलाद आदम दुनियावी खुशियों और आर्जी कामयाबियों की तरफ राग़िब हुई। बाज़ अपने जज्बात और ख्वाहिशात के ताबे हो गए। आदम ने इन्हें समझाया कि ये दोनों पहलू एक ही कहानी का हिस्सा हैं। बग़ैर मुखालफत और हसद के चुने हुए अपनी ईमानदारी और उसूलों का मुज़ाहिरा नहीं कर सकते थे। कुछ लम्हात आए जब एक चुना हुआ फ़र्द तन्हाई में गुम हो गया, दिल में सवालात के बोझ तले दब गया। ये सवालात इंसाफ, जिम्मेदारी, सच्चाई और अखलाकियात के बारे में थे। यही वो निशानियाँ थीं जो चुने हुए के किरदार की पहचान बनती थीं। गैर चुने हुए अक्सर उनकी नीयत और कुर्बानी को नहीं समझते। उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका ईमान उनको तन्हा कर देता। लेकिन इन्हीं में उनकी रोशनी बरकरार रहती। आदम ने ये भी समझा कि चना जाना हमेशा मुस्तकिल नहीं होता। अगर एक चना हुआ फ़र्द गुरूर और तकब्बुर इख्तियार कर ले तो वो उन लोगों से भी नीचे गिर सकता है जो कभी चुने नहीं गए। ये सबक हर दिल को याद रखना चाहिए। चुने हुए हर रोज़ अपने आमाल के ज़रिए चुने जाते। ये सिलसिला हर नस्ल में दोहराया जाएगा। एक रास्ता इंसाफ और सब्र का, एक रास्ता ख्वाहिश और शौक का। और इंसानियत अक्सर पहला रास्ता नज़रअंदाज करती है। चुने हुए अक्सर तन्हा, मजबूर और तन्हा रहते, और अपने सबसे करीब लोगों से भी समझे नहीं जाते। लेकिन उसी तन्हाई में उनका ईमान और रोशनी बरकरार रहती है। आदम ने अपनी औलाद को आखिरी बार समझाया, चना जाना इनाम नहीं, ये जिम्मेदारी है। जो फ़र्द नाकाम होता है, वो सिर्फ खुद नहीं गिर रहा बल्कि मुस्तक़बिल की मिसाल को भी कमज़ोर कर रहा है। और जो कामयाब होता है, इसकी तारीफ़ दुनिया से नहीं बल्कि अपनी तक़दीर से होती है। ये सिलसिला हर नस्ल में जारी रहेगा।
हर फैसला, हर अमल, हर जिंदगी इस कहानी का हिस्सा है। और सबसे अहम बात ये कि शायद आप भी आज चुने हुए में शामिल हैं। न सिर्फ अपनी नस्ल की वजह से बल्कि इसलिए कि आपका दिल सच्चाई और इंसाफ को फरामोश नहीं करता, मुश्किल में भी सही का साथ देता और सब्र करता है। आदम ने अपनी औलाद को आखिरी बार जुमा किया, ना किसी फैसले के लिए बल्कि नसीहत के लिए। चुने हुए लोगों पर अल्लाह की तरफ से आयत जिम्मेदारी वाज़ेह हो गई थी। कुछ बच्चे ईमानदारी, कुर्बानी और सच्चाई को समझ गए, कुछ दुनियावी ख्वाहिशात और गुरूर के पीछे भाग रहे थे। आदम ने आहिस्ता आहिस्ता हर लफ्ज़ कहा, हर लफ्ज़ में वो हिकमत थी जो एक ऐसे बाप के दिल से निकलती है जिसने आसमान और इंसान के दिल की हकीकत देखी हो। चना जाना इनाम नहीं बल्कि सबसे भारी जिम्मेदारी है। तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें दुनिया से मुखालफत का सामना होगा, और बाज़ औक़ात वही लोग तुम्हें ना समझेंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। लेकिन तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और ईमान है वो सबसे कीमती है। चुने हुए लोगों ने ये बात समझी, उनके दिल ने वो सब जज्ब किया जो दूसरे नहीं समझ सके। गैर चुने हुए लोग नज़रअंदाज करते, अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी इज्जत को तरजीह देते। मगर आदम जानता था कि गैर चुने हुए भी कहानी का हिस्सा हैं। बग़ैर उनकी मुखालफत के चुने हुए अपनी सच्चाई का मुज़ाहिरा नहीं कर सकते। तारीफ़ में चुने हुए लोग कभी कभार पैगंबर, कभी अखलाक़ी रहनुमा, कभी खामोश गवाह बने। हर नस्ल में यही सबक बार बार दोहराया गया, चना जाना ताज, दौलत या दुनिया की तारीफ़ से नहीं बल्कि ईमान, अदल और कुर्बानी से होता है। आदम की कहानी उन उसूलों की शुरुआत थी, और ये उसूल आज भी हर चुने हुए दिल में जिंदा हैं। सबसे अहम हकीकत यह है कि शायद आप भी आज चुने हुए हैं। न सिर्फ इसलिए कि आपकी नस्ल ख़ास है बल्कि इसलिए कि आपका दिल सच्चाई को तरजीह देता है। आप मुश्किल हालात में भी उसूल पर कायम रहते हैं और आप सब्र और ईमानदारी को अपनाते हैं। आदम ने अपनी औलाद को आखिरी नसीहत दी, चना जाना कभी आसान नहीं होता, और नाकामी सिर्फ ज़ाती नुकसान नहीं बल्कि मिसाल को भी कमज़ोर करती है। कामयाबी की तारीफ़ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। ये रास्ता हमेशा आजमाइशों और सोबतों से भरा होगा, मगर यही रास्ता तुम्हें मकसद और तकदीर तक पहुंचाएगा। चुने हुए लोगों की कहानी हर नस्ल में जारी रहेगी। हर फैसले, हर अमल और हर जिंदगी इस सिलसिले की गवाह है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये सफ़र आपकी अपनी ज़िंदगी में भी जारी है। आदम की पहली नस्ल ज़मीन से दूर हो गई, मगर चुने हुए लोगों का विरसा आज भी जिंदा है। आप इस सिलसिले का हिस्सा हैं। इस रास्ते को समझें, इज्जत दें और याद रखें कि चना जाना कभी आसान नहीं मगर हमेशा मानी रखता है। ये आपका चैनल है, ये आपकी कहानी है, और ये आपका सफ़र है आदम से लेकर आज तक। अगर आप इस रास्ते को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपनी असल कहानी कभी ना भूलें।